Students, myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor PG Department of Chemistry, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीकानेर। आज हम फोटोकेमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पदार्थ द्वारा प्रकाश के अवशोषण को प्रकाश के पथ की लंबाई और प्रकाश की तीव्रता किस प्रकार से प्रभावित करती है, इस संबंध में सर्वप्रथम 1760 में लैम्बर्ट ने एक नियम दिया जिसे लैम्बर्ट का नियम या लैम्बर्ट लॉ कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब किसी समांगी अवशोषक में से एक वर्णीय या मोनोक्रोमेटिक प्रकाश की किरणों को प्रभावित किया जाता है तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। Then a monochromatic radiation is passes through a homogeneous absorbing medium. The rate of decrease in the intensity of radiation with thickness of absorbing medium is directly proportional to the intensity of incident light. That is, I upon I0 is equal to IE minus AS. I0 is the intensity before passing absorbing medium, I is the intensity after passing absorbing medium, X is the thickness of absorbing medium, A is the expansion coefficient, and I upon I0 is also called transmittance or transmission T. लैम्बर्ट लॉ का डेरिवेशन। जब किसी समांगी अवशोषक में से एक वर्णीय मोनोक्रोमेटिक प्रकाश की किरणों को प्रभावित किया जाता है तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। When a ray of monochromatic light passes through an absorbing medium, its intensity decreases proportional to the length of medium. Minus di upon dx is proportional to I. Minus di upon dx I के समानुपाती होती है और minus di upon dx is equal to ji और di upon I is equal to minus k dx। यहाँ पर I माध्यम की x मोटाई से गुजरने के बाद विकिरणों की तीव्रता है। इंटेंसिटी ऑफ radiation after passing through the medium of X thickness. Di अनंत सूक्ष्म मोटाई dx से गुजरने पर विकिरणों की तीव्रता में हुई अनंत सूक्ष्म कमी है। Di is equal to infinite small decrease in intensity of radiation after passing through medium of dx thickness. X is the constant which is known as absorption coefficient. X एक स्थिरांक है जिसे अवशोषण गुणांक कहा जाता है, जिसका मान अवशोषक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। समीकरण di upon I is equal to minus x dx को हम x is equal to 0 से x is equal to x तक की सीमा में समाकलन करें तो on integration of our equation gives integration from I0 to I di upon I is equal to minus x is equal to 0 to x is equal to x k dx और ln I upon I0 is equal to minus kx और I upon I0 is equal to e minus kx और I0 is equal to exponential minus kx। ये लैम्बर्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है, जहाँ पर I0 आपतित विकिरणों की तीव्रता है,
आई ट्रांसमिटेड रेडिएशन या पारागत विकिरणों की तीव्रता है। अतः अवशोषक पदार्थ द्वारा अवशोषित विकिरणों की तीव्रता आई एब्जॉर्ब इज इक्वल टू I0 माइनस आई, और आई एब्जॉर्ब इज इक्वल टू I0 और I इज इक्वल टू I0 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस kx का मान हम इस I के जगह रखेंगे तो I0 माइनस I0 एक्सपोनेंशियल माइनस kx, और I एब्जॉर्ब इज इक्वल टू I0 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस kx। सन 1852 में बियर ने इस नियम को विलयनों पर लागू करके एक नियम दिया जिसे हम बियर का लॉ कहते हैं। This is an extension of Lambert's law put forward by Beer in 1852। इसके अनुसार यदि किसी एक वर्णीय प्रकाश की किरण पुंज को किसी अवशोषक पदार्थ के विलयन में से गुजारा जाए तो विकिरणों की तीव्रता में कमी माध्यम में उपस्थित विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है। When a monochromatic light is passed through a solution, the decrease in the intensity of light will the thickness of the solution is directly proportional to not only to the intensity of the incident light but also to the concentration C of the solution. Thus, for a solution, mathematically we have minus di upon dx is proportional to L into C, or minus dl upon dx is equal to epsilon L C, where epsilon is the constant of proportionality and is called molar absorption coefficient. Its value depends upon the nature of the absorbing solute and the wavelength of light used. Beer law ये कहता है कि जो किसी भी सॉल्यूशन से हम मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पास करें तो डिक्रीज इन इंटेंसिटी उसकी कंसंट्रेशन के समानुपाती होती है, और लैम्बर्ट लॉ ये कहता है कि जो डिक्रीज इन इंटेंसिटी उसकी पाथ लेंथ के समानुपाती होती है। तो हम दोनों नियमों को मिलाकर जो नियम दिया गया उसको लैम्बर्ट-बियर्स लॉ कहते हैं। When a monochromatic radiation is passed through a solution of absorbing medium, the rate of decrease in the intensity of radiation with thickness of absorbing medium is directly proportional to the intensity of the incident radiation and the concentration of the solution. Mathematically हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, log at the base of 10 I upon I0 is equal to minus epsilon C into x, where I0 is the initial intensity before passing absorbing medium. I0 आपतित प्रकाश की तीव्रता है। I is equal to intensity after passing through absorbing medium. X is the thickness of absorbing medium. X absorbing medium की मोटाई है, और एप्सिलॉन मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट या मोलर अवशोषण गुणांक है, जिसका मान अवशोषक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इक्वेशन माइनस di अपॉन dx इज इक्वल टू k डैश I t को हम इंटीग्रेट करेंगे
समाकलित करेंगे फ्रॉम x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू x तक। तो इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम I0 टू I di अपॉन I इजिकल टू माइनस इंटीग्रेशन x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू x k डैश c इंटू dx और ln I अपॉन I0 इजिकल टू माइनस k डैश c इंटू x और log I अपॉन I0 इजिकल टू माइनस k डैश c इंटू x। अगर इसको बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो log I अपॉन I0 इजिकल टू माइनस k डैश अपॉन 2.303 c इंटू x log I upon I0 is equal to alpha Cx, where alpha is equal to k dash upon 2.303. K dash is also constant and 2.303 is constant और alpha हम मोलर विलोप गुणांक कहते हैं या इसको मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट कहते हैं। A is equal to log I upon I0। log I0 upon I को अवशोषणांक या एब्सॉर्बेंस कहते हैं जो एप्सिलॉन C इंटू L के बराबर होती है। यहाँ पर A अवशोषणांक है, अल्फा को हम एप्सिलॉन के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं जो मोलर अवशोषकता या मोलर एब्सॉर्बिविटी है। L विलियन में प्रकाश द्वारा दिए गए पथ की दूरी है। ये बीयर्स-लैम्बर्ट लॉ का मैथमेटिकल रूप है जिसके अनुसार अवशोषणता या अवशोषणांक A को सांद्रता के विरुद्ध आलेखित किया जाए तो वो मूल से निकली हुई एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। इस प्रकार इस ग्राफ के आधार पर इस नियम का सत्यापन किया जाता है। लिमिटेशन ऑफ बीयर्स-लैम्बर्ट लॉ या सीमाएं और बीयर्स-लैम्बर्ट लॉ नियम वैसे तो काफ़ी उपयोगी है लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। इन सीमाओं में ही इस नियम को हम सही रूप से लागू कर सकते हैं या इसकी वैधता इन सीमाओं पर ही निर्भर करती है। इसकी प्रमुख सीमा या इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है। पहला, इंसिडेंट लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। आपतित प्रकाश किरण एक वर्णी या मोनोक्रोमेटिक या अकेली तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ वाला होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट वो लाइट होती है जिसमें केवल एक तरंग दैर्घ्य की लाइट हो। दूसरा, वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। प्रयुक्त विलयन पर्याप्त तन्नु होना चाहिए। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में हम इसे लागू नहीं कर पाएंगे। तीसरा, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। प्रयोग के दौरान ताप हम स्थिर रहना चाहिए। चौथा है, विलय पदार्थ का विलयन में कोगुलेशन या स्कंदन नहीं होना चाहिए वरना प्रकाश स्कैटरिंग होगी या प्रकीर्णित हो जाएगा। कोगुलेशन ऑफ सोल्यूट मेक और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पांचवा, विलयन में विलय पदार्थ के अणुओं की प्रकृति में संगुणन, एसोसिएशन, आयनन, आयोनाइजेशन, जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस आदि जैसा कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसा होगा तो उसकी कंसंट्रेशन में परिवर्तन होगा और हम
जो बीएस नंबर्स लॉ को सही रूप से लागू नहीं कर पाई।